Okay, we'll start today's class. Today we'll start from preparation of aldehyde. The first way of preparing aldehyde is from acyl chloride, or we can say acid chlorides. Now acid chloride is hydrogenated over catalyst like palladium on barium sulfate. Okay, so when we hydrolyze means that addition of oxygen, means that here hydrogenated means addition of hydrogen. Okay, so you have now acid chloride means COCl is there, is not, and from that COCl, if you added ice, then you get one now CHO is there, is not, and one ice will goes to what, ICl along with the Cl. ओके, तो आइस जो है सीएल के साथ आईसीएल होके चला जाएगा, एक आइस जो बचा था किस में रह जाएगा, CHO बन के रह जाएगा. ओके, सो लाइक दिस वन यू विल गेट इट नाउ एन एल्डिहाइड. क्लियर? सो हाइड्रोजनेशन ऑफ acyl chloride or acid chloride, hydrogenation of acid chloride gives an aldehyde. Okay, if you have taken benzyl chloride, then you will get it now benzaldehyde. Clear? But during this hydrolysis means that during this addition of hydrogen you need to use palladium in presence of barium sulfate as catalyst. Clear? So as a reagent you can say it. Okay, so you can write the question. Name the reagent. Name the reagent which can convert benzyl chloride to benzaldehyde. Benzaldehyde. Okay, or within bracket you can write acid chloride to aldehyde. Acid chloride to aldehyde. Or Rosenmund reduction. This reaction is called as a Rosenmund reduction. ROSENMUND. Rosenmund reduction. Okay? Clear? Okay? Okay? So like this one we can ask. So your answer is now hydrogen in presence of PD and the BaSO4. क्लियर? ठीक है, तो आप रिएक्शन के साथ भी पता चलना चाहिए. हाउ विल यू कन्वर्ट बोल के आने से तो पूरा रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज व्हाट अबाउट द Rosenmund reduction. Now formaldehyde cannot be prepared from methyl oxychlorides. Okay, formaldehyde cannot be prepared by this method. Okay, तो यहाँ में भी क्या है, मिथॉक्सीक्लोराइड में भी आपका क्या है, यहाँ में तो ये भी एसिड क्लोराइड है, तो एल्डिहाइड होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये नहीं बनेगा बोल के बोला. ओके, ठीक है. सो योर CHOCl cannot convert into ICHO. Okay, clear, by this Rosenmund reduction. So next is about the nitriles and ester. So first one from nitriles, that we call as a Stephan reaction. So we can ask what is Stephan reaction. Clear? Then in Stephan reactions what we have done is that alkyl nitrine react with stannic chloride. React with now stannic chlorides in presence of ICl. Okay, alkyl nitrine जो है किसका साथ, आपका SnCl2 का साथ रिएक्शन करो बोला है, इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, ICl में. तो अभी क्या डालेगा, अल्काइल एमाइड मिलेगा. ओके, क्लियर? अल्काइल एमाइड जो है फिर हाइड्रोलाइसिस करेगा, देन क्या मिलेगा, आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा बोल के बोला. ठीक है,
and this reaction is called as what? This reaction is called as Stephen reaction. Clear? समझ में ना? So again, in another way, these nitrins are reduced to diisobutyl aluminum hydride, and that convert to one of imines, and if you added this one to this imine, you added water, then you will get it aldehyde बोल के बोला है. ठीक है. imine means CH जो है उसको imine बोलते हैं. इधर में RCH डबल बॉन्ड NH रहता था ना पहला स्टीफन में देखो. ठीक है. हाँ, उसको बोलते हैं आइमिन्स बोलते हैं. ओके. ये आइमिन जो है हम लोग आइमिन को फिर क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा, तब क्या मिलेगा बोला? आपका एल्डिहाइड मिलेगा बोल के बोला. क्लियर ना? समझ में ना? सो लाइक दिस वन. नाउ हियर in this case what we use? What do we use? क्या यूज करता है? डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ओके. तो इन शॉर्ट में क्या लिखता है? DIBALIs बोलते हैं. ओके. ठीक है. ये नहीं होने से भी क्या क्या यूज करता है हम लोग का? हाइड्रोलाइसिस मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकता है बुर्बक. एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है. समझा है ना? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर से बताया था ना. ये हाइड्रोलाइसिस का ये है बोल के रिड्यूस करेगा बोलने से. ओके. रिड्यूसिंग एजेंट है ये. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, वो सब जो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं नहीं. तो सिर्फ इसमें ये यूज करना ना. हाँ, लेकिन हम लोग क्या बोला अभी आपका ये केस में DIBALIs यूज करेगा बोल के बोलो मेजोरिटी. ओके. क्लियर? सो वी कैन आस्क हाउ विल यू कन्वर्ट alkyl nitrogen to aldehyde. Alkyl nitrogen to aldehyde. Okay. Give the reagent. Give the reagent used for this process. क्लियर? ठीक है. तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? आंसर में क्या है? हाँ? Alkyl nitrogen can be converted into aldehyde by reducing the imines with stannous chloride in presence of HCl. Or with DIBAL, capital all, DIBALIs. ओके. क्लियर? डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते थे ना. ठीक है. तो थ्रू दिस यू कैन कन्वर्ट इट बोल के बोला. क्लियर? स्टर रिड्यूस टू नेक्स्ट पॉइंट. आंसर उसका खत्म हो गया. अभी नेक्स्ट पॉइंट. ओके. स्टर रिड्यूस टू एल्डिहाइड विथ DIBALIs followed by hydrolysis.
ओके, ठीक है। तो स्तर ले लो अभी, स्तर मीन्स हम लोग का RCOO बोला था ना, तो नाउ ये स्तर है अभी CH3 CH2 9 टाइम्स C++O जो है ये स्तर है। ओके, तो स्तर को हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने ये कर दिया, रिड्यूस कर दिया, फॉलोड बाय क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। ओके, तो क्या आएगा अभी, एक एल्डिहाइड आएगा, एक अल्कोहल आएगा। दैट मीन्स इधर का C2H5O जो था ना, इधर में क्या जाएगा, वाटर बन जाएगा, मिथर सॉरी अल्कोहल बन जाएगा बोल के बोला। ओके, ठीक है, समझ में ना। लास्ट पार्ट जो है बुर्बक, लास्ट पार्ट वो क्या क्या बन जाएगा, अल्कोहल। बड़ा पार्ट जो है ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, समझा बे। ओके, समझ में ना। लार्जर नंबर जो है आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड, करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा, और स्मॉलर नंबर जो क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा बोल के बोला। ओके, ठीक है। तो लाइक दिस वन स्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय यूजिंग व्हाट, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझ में ना। डी इंडिकेट्स द डाई बोलते हैं, आई इंडिकेट्स द आइसो, एल मीन्स एल्यूमिनियम, एस मीन्स हाइड्राइड, समझा बे। फॉलोड बाय क्या बोला, वाटर एडेड कर रहे हैं, तो वाटर एडेड वाला को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोल रहे थे ना, ठीक है। लाइक दिस वन, सो यू कैन कन्वर्ट ऑन आउट ईस्टर और नाइट्रिल टू एल्डिहाइड, ठीक है, समझ में ना। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन सिखा गए हैं। फर्स्ट में क्या है, रोशनमून रिडक्शन क्या है बोल के, ओके। नेक्स्ट में क्या है, स्टेफन रिएक्शन क्या है बोल के, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग का हाउ विल यू कन्वर्ट एंड स्टार्ट टू एल्डिहाइड, ठीक है। तो स्तर क्या है बोलने से क्या होगा, स्तर क्या है, स्वीट स्मेल सब्सटेंस है, हैविंग द फंक्शनल ग्रुप RCOO RDS बोलते हैं। ओके, तो कैसा बनता है, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन करो, ठीक है, तब क्या बनेगा, स्तर बनेगा, समझा ना। ओके, ठीक है। नाउ विल गो टू द ईथर रिएक्शन। तो आपका किताब में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन उधर से ये रहता है। ओके, ईथर रिएक्शन को हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बोल के बोलते हैं। तो नंबर 1 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बोल के बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन में आपको ऑक्सीडाइज करो बोल के बोले, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, क्रोमाइल क्लोराइड चाहिए। ओके, ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए बोला, क्रोमाइल क्लोराइड, क्लियर। देन यू विल गेट इट नो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है उधर में हाइड्रोलाइज करो, ओके, देन यू विल गेट इट नो एल्डिहाइड मिलेगा, समझ में ना। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वन ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए ईथर रिएक्शन, समझ में आया। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या बोला, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बोला, ये होल को। ओके, क्लियर। तो अभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस टुलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड बोल के बोला। ओके, टुलुइन को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या करेगा, बेंजोइक एसिड बना देगा बोल के बोला। ओके, क्लियर। हाउएवर इट इज possible to stop oxidation at the aldehyde stage with suitable reagent that convert methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further. Okay, clear. That means आपका सबसे पहला, अच्छा से सुन पहला, ओके, मिथाइल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, टुलुइन बोलते हैं। मिथाइल मीन्स आपका CH3 है, ठीक है, CH3 में क्या डाल दिया, बेंजीन में डाल दिया, तो मिथाइल बेंजीन हो गया। उसको कॉमन नेम क्या बोला, टुलुइन बोलते हैं। ओके, क्लियर। बेंजीन रिंग में एक CH3 डालने से उसका नाम दिया टुलुइन बोल के। टुलुइन को हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं बोला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कराने के समय में
आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है बोल के बोला। ठीक है, समझ में ना। लेकिन बेंजोइक एसिड बनने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बीच में एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे, एल्डिहाइड से फिर कन्वर्ट होके बेंजोइक एसिड बनता है। समझा में? ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, टोलुइन गोज टू, हाँ, टोलुइन गोज टू बेंजोइक एसिड आएगा। ओके, दैट मीन्स CH3 जो है अब ऑक्सीडाइज करने से, ऑक्सीडाइज मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलता है ना। ठीक है, तो क्या आएगा, COOH आएगा। मीन्स दैट CH3 से O डालना है ना, तो क्या आ गया, COOH आएगा। ओके, तो COOH आने का प्रोसेस जो है, वही प्रोसेस में हम लोग क्या बनता है बोला, क्या बनता है बोला, एल्डिहाइड बन जाता है बोला। तो COOH आने के लिए आपको कितना O डालना पड़ेगा, 2 O डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको ऑक्सीजन जो दोनों एक ही साथ नहीं घुसेगा, तो फर्स्ट में क्या घुसेगा, एक O घुसेगा। तो एक O घुसा मतलब CHO आ गया कि नहीं, समझा बे। तो क्या आ गया, एल्डिहाइड बन गया। ओके, तो एल्डिहाइड से फिर एक और O घुसेगा, तब क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो यहाँ में जो एसिड बनने के पहले तुम रुका सकता है बोल के बोला, समझा बे। तो रुकाने से क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलेगा बोल के। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपका एक सुइटेबल रिएजेंट चाहिए। समझा बे। तो इन द इटार रिएक्शन, देखो इटार रिएक्शन में हम लोग क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ओके, और क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम क्या है, क्रोमाइन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज क्रोमाइन क्लोराइड बोल के आ गया, समझा बे। ठीक है, क्रोमाइन क्लोराइड प्रैक्टिकल में बार बार यूज करेगा, वाइवा में भी पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला बाहर होना है, क्लियर। ठीक है, क्रोमाइन क्लोराइड, इधर देखो, क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। ओके, एक गिवन सॉल्ट में आपका क्लोरीन है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट करता है। ओके, क्लोरीन फ्रॉम द सॉल्ट। ओके, ठीक है, तो क्रोमाइन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बोला, CrO2Cl2 बोल के बोलता है। ओके, तो अभी यहाँ में क्रोमाइन क्लोराइड जो है येलो वेपर गैस है, क्या रहना, ओके, येलो वेपर गैस है। ओके, तो कैसा बनता है फिर आगे, क्लियर। आपका गिवन सोल्ट जो है पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ मिक्स करो, समझ में ना, K2Cr2O7 के साथ मिक्स करेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेगा, एसिड डाल देगा, कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड डालने के समय में अगर येलो गैस आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्रोमाइन क्लोराइड गैस है। ठीक है, पंजन स्मेल होगा, मीन्स खांसी आएगा, समझा ना। तुम लोग प्रैक्टिकल में क्लास 11 में किया था ना, तो हम बोला था पानी डालो बोल के, सल्फर एसिड डाल के जो निकाला वाला, ओके, कंसनट्रेटेड सल्फर एसिड डालने के समय वो आएगा। तो उसके बाद क्या डालेगा, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो कराता है ना, येलो कलर आता है ना, यार आया बे। तो जब येलो कलर आता है, इसके बाद क्या करता है, एसिटिक एसिड डालता है। तो येलो वेपर, येलो प्रेसिपिटेट आता है कि नहीं चेक करता था ना, समझ में आ गया ना। ओके, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलता है, क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। ओके, समझ में ना, ये येलो वेपर जो है ये ओके, दिस येलो वेपर जो है इज यूज टू ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स द फंक्शन ऑफ योर क्रोमाइन क्लोराइड इज नथिंग व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ किसमें क्या, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 मीन्स क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो आपका इधर देखो क्या है, अभी CH3 है कि नहीं, मिथाइल में CH3 है ना, तो आपका 2 हाइड्रोजन को किसने कन्वर्ट हो गया, 2 हाइड्रोजन को CrO2Cl2, उसने 2 मोलिकुल ने चेंज, मतलब उसको ये कर दिया है, ये वाला CrO2Cl2 है। ठीक है, ये 2 टाइम्स डाल दो, समझा ना। ठीक है, CrO2 था ना, एक O इस तरफ रखा गया, एक O उस तरफ रखा गया, दूसरा कुछ नहीं है, समझ में आ गया। तो अभी मान लो इधर से
हम लोग क्या करेगा, हम लोग एसिड डाल दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ओके, H3O जो है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं ना। हाइड्रोनियम कैसा बनता है, पानी में एसिड डालने से वो बनता है ना। तो हाइड्रोनियम आयन डाल दिया तो क्या गया, अभी ये जो है ये CH2O बोल के रह गया, समझा भी। तो बेंजीन में CH2O होने से क्या बोलता है, बेंजाल्डिहाइड बोलता है ना, समझा भी। ओके, रिमेनिंग आपका माथा मत खाना, CrOiCl2 जो है आपका दूसरा कंपाउंड होके गया, क्रोमियम क्लोराइड प्लस आपका वाटर बन के चला जाएगा, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। ओके, समझा ना, ओनली मेन प्रत्यय ही लिखेगा। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इथार्ड रिएक्शन। क्लियर ना? सो दिस इज व्हाट अबाउट इथार्ड रिएक्शन। Now next is now side chain halogenation followed by hydrolysis बोल के बोला है। ओके, side chain क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला बी का तो सेम है। ओके, तो आपका बी में क्या होता है, आपका क्रोमियम, दैट मीन्स क्रोमाइन क्लोराइड के बदले क्रोमियम ऑक्साइड भी यूज कर सकता है बोल के बोला है। ओके, CrO3 क्रोमिक एसिड जो है, समझ में ना। नंबर बी का जो है वो देखो, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड बोलता था ना। ओके, तो टोलुइन जो है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नाउ एन मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हिट करो बोल के बोला। ओके, कहाँ तक हिट करेगा, 273 to 283 केल्विन तक। ओके, तो आपका H3 जो था, H2 जो है एनहाइड्रस ग्रुप ने ये ले लेगा। ओके, दैट मीन्स CH2O CO CH3 2 टाइम्स आ गया। पहला क्रोमाइन क्लोराइड में क्या होता है, OCrOiCl 2 टाइम्स, Cl2 2 टाइम्स बोलता था ना, सेम बराबर यहाँ में भी आपका एसिड एनहाइड्राइड जो उसका 2 मॉलिक्यूल डाल दो बोल। ओके, ठीक है, उसमें से फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो बोल के बोला, देन क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। समझा ना, ये समझ में आ गया ना। नाउ नेक्स्ट में हम लोग सेकेंड प्रोसेस में क्या बोला, साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस बोल के बोला। ओके, तो टोलुइन जो है उधर में क्लोरीन डाल दो, टोलुइन में क्या डाला, क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Hb मीन्स लाइट ए। ओके, ठीक है, लाइट डाल दिया तो क्या गया, अभी Cl2 रिप्लेस कर लिया। पहला का सेम प्रोसेस है ना, पहला हमने H2 को रिप्लेस किया था कि नहीं, अभी यहाँ में भी Cl 2 मॉलिक्यूल में रिप्लेस करेगा उसको। ओके, समझ में ना। ओके, देन उसमें क्या डाला, वाटर डाल दिया। ओके, एट 373 केल्विन। ओके, देन क्या आ गया, अभी एल्डिहाइड आ गया। समझ में आया ना। ओके, सो लाइक दिस वन, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस वी कैन कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो अभी एग्जाम को क्वेश्चन में हाउ विल यू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड बोले जाए, कोई भी प्रोसेस यूज कर सकता है यहाँ में। ओके, ठीक है, हाँ, समझ में आ गया, हाउ विल यू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड। तो आप फर्स्ट वाला क्रोमाइन क्लोराइड यूज किया वाला वो कर सकता है, नहीं तो क्या बोला, क्रोमिक ऑक्साइड अलॉन्ग विथ एसिडिक एनहाइड्राइड वाला यूज कर सकता है, नहीं तो क्या है, क्लोरिनेशन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वो कर सकता है। ओके, ठीक है, सो यू कैन कन्वर्ट टोलुइन और मिथाइल बेंजीन टू एल्डिहाइड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज अबाउट द गिटरमैन-कोच रिएक्शन, गिटरमैन-कोच रिएक्शन। ओके, ठीक है, गिटरमैन-कोच रिएक्शन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन बेंजीन और इस डेरिवेटिव, ओके, इस बेंजीन एंड इस डेरिवेटिव मींस टोलुइन भी हो सकता है, याद रहना। ओके, सिर्फ बेंजीन होगा बोल के नहीं है, बेंजीन में बेंजीन डेरिवेटिव है, आपको फेनॉल भी बेंजीन डेरिवेटिव है कि नहीं, तो कोई भी चीज़ हो सकता है। ओके, बेंजीन और इस डेरिवेटिव इस ट्रीटेड विद वन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूपरस क्लोराइड। समझा भी, क्यूपरस क्लोराइड हो सकता है, नहीं तो क्या बोला,
एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है, उसका थ्रू से क्या डालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द HCl डालना है। ओके, देन इट गिव्स नो बेंजाइल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा बोल के बोला। ओके, क्लियर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, गिटारमैन कोच सिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, समझ में ना। तो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर एल्डिहाइड। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर कीटोन। ओके, ठीक है, अभी कीटोन का नंबर 1 फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ओके, फ्रॉम एसाइल ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद नो डाइअल्काइल कैडमियम। ओके, तो डाइअल्काइल कैडमियम जो नेचर में नहीं मिलेगा, आपको बनाना है, समझा बे। ओके, डाइअल्काइल कैडमियम कैसा बनाएगा, आपका ग्रिग्नास रिएजेंट जो है कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ। ओके, ग्रिग्नास रिएजेंट कंबाइंड विद कैडमियम क्लोराइड, समझ में आया ना। देन यू गेट वन डाइअल्काइल कैडमियम, दैट इज R2CD जो है उसका नाम है डाइअल्काइल कैडमियम बोलते हैं। ओके, समझ में आया ना अभी। तो आपका मेन ये डाइअल्काइल कैडमियम जो है आपको एसिड क्लोराइड के साथ फिर कंबाइन करो। ओके, डाइअल्काइल कैडमियम ऑन ट्रीटमेंट विद नाउ एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड, देन यू विल गेट ए कीटोन। क्लियर, ठीक है, आपको कीटोन मिलेगा। ओके, ठीक है, तो कीटोन इन द कैडमियम क्लोराइड मिल गया, समझ में ना। ओके, so like this one you can prepare ketone from what, acid chloride, by using what, by using dialkyl cadmium। ओके, तो ये आपका रिएजेंट के नाम पता चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ में बोल के नहीं अटक बोल दो। नाउ नेक्स्ट इज वन ऑफ फ्रॉम नाइट्रिल्स बोल के फ्रॉम व्हाट, नाइट्रिल्स। ओके, तो ट्रीटिंग ए नाइट्रिल विद ग्रिग्नास रिएजेंट, नाइट्रिल मीन्स क्या बोल रहा है, नाइट्रिल और आइमीन का क्या डिफरेंस है। CN ने शुरू, C के साथ C लिंक करने से नाइट्रिल बोलता है बोला था ना, N के साथ ये करने से आइमीन बोलता है बोला था ना, NC होने से मीन्स आइसोसाइनाइड को आइमीन्स बोलेगा बोल के बताया था ना। ओके, और CN को मीन्स साइनाइड को नाइट्रिल्स, ये समझना है, ठीक है, साइनाइड को नाइट्रिल और आइसोसाइनाइड को आइमीन्स, ठीक है। साइनाइड मीन्स दैट NC, उसको आइमीन। ओके, CN को नाइट्रिल्स। सो ट्रीटिंग ए नाइट्रिल, साइनाइड treating a nitrile with Grignard reagent followed by hydrolysis give a ketone। ओके, तो आपका नाइट्रिल ले लो, अल्काइल नाइट्रिल है, ये क्या है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, उसको क्या नाम दिया, इथाइल नाइट्रिल, मिट इट 2 कार्बन है बोल के लेगा, CN तो साइनाइड का है ना। ओके, तो इथाइल नाइट्रिल है, इथाइल नाइट्रिल जो है हम लोग ग्रिग्नास रिएजेंट है नेक्स्ट वाला। ओके, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड उसको बोलते हैं ग्रिग्नास रिएजेंट। C6H5 जो R है, समझा अभी, ग्रिग्नास रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, ईथर। ओके, देन ईथर के साथ हम लोग ये करा दिया, तो क्या मिल गया हम लोग का, CH3 CH2 CN Mg Br, नेक्स्ट में C6H5 मिल गया। ओके, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ठीक है, तो उधर से हाइड्रोलाइसिस कर लिया। ओके, मीन्स वाटर डाल दिया, समझा ना। तो हाइड्रोलाइसिस करने के समय में आपका N जो है NH3 बोल के चला जाएगा, समझा भी, नाइट्रिल का N जो था ना वो क्या होके जाएगा, एमोनिया बन के चला जाएगा, ठीक है। तो Mg जो है MgOH वाटर में H3O था ना, H3O से क्या चला गया अभी,
अरे व्हाट H3O हाइड्रोनियम आयन जो है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जो है ओके तो ये हाइड्रोलाइसिस जो है इधर से क्या रहा हम लोग का H2 एंड द OH बचेगा ना समझा भी H3O मीन्स H2 एंड द OH बचेगा ना तो अभी H2 जो है उधर के साथ N के साथ NH3 बन के चला गया बोल के बोला ओके ठीक है समझ में ना N के साथ तो अभी क्या बचा Mg है OH बचा है क्या ना तो MgOH बोल के ये चला जाएगा ये तो 3 कंपाउंड आ जाएगा ना समझ में ना तो अभी क्या बचा C2H5C डबल बॉन्ड OC6H5 बोल के बचेगा ओके समझ में आया सो लाइक दिस वन उसका नाम क्या है बोला 1 कार्बन नंबर 1 ये है C6H5 जो है कार्बन नंबर 1 है ओके तो समझा ना तो यहाँ से कार्बन नंबर 1 2 3 ओके तो ये 1 में क्या है फिनाइल ग्रुप है ना तो 1 फिनाइल ओके 3 मीन्स क्या है प्रोप है ना समझा ना तो 1 फिनाइल प्रोपानोल मिल गया क्लियर समझ में आया ना बे फ्रॉम नाइट्रल्स ओके नेक्स्ट इज अबाउट फ्रॉम बेंजीन एंड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोल के बोलते ओके तो अभी बेंजीन ले लो देन एसिड अल्काइल और एराइल हेलाइड के साथ ओके क्लियर ए आर्मिस एराइल बोला था ना आर्मिस अल्काइल बोला था ना तो ये भी एसिड क्लोराइड है ठीक है ना तो इन प्रेजेंस ऑफ नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ तो क्या मिल गया बोला क्या मिल गया कीटोन मिलेगा बोल के बोला ओके क्लियर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड क्या बोलेगा अल्काइल और एराइल कीटोन मिलेगा इसका नाम है बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल और एराइल कीटोन बोल के ठीक है समझ में ना तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं इधर में देखो बेंजीन है ArC डबल बॉन्ड OCl हो गया देन एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ किया तो आपका अल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कीटोन मिल गया ओके क्लियर तो अभी यहाँ में क्या यूज़ किया एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ किया था ना ये ठीक है क्लियर तो हम लोग अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करने से क्या रिएक्शन बोला चैप्टर 2 चैप्टर 3 में प्रैक्टिकल का मीन दैट बुक 2 का फेडरल क्राफ्ट बोला था ना ठीक है समझा भैया फेडरल क्राफ्ट में आपका अल्काइल ग्रुप डालने से फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोला था ठीक है ना एसाइल ग्रुप डालने से फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन बोला था ना सो दिस इज व्हाट फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन ओके एसाइल ग्रुप समझा भैया CH3CO बोला था ना 2 times O बोल के आता बोला था ना एसिडिक एनाइड्राइड डालना है वाला समझा भैया ठीक है तो अगर CH3 सिर्फ डाला तो क्या होगा हाँ अल्काइल ग्रुप है ना तो अल्काइलेशन बोलेगा ना बुर्बक बार बार वही को ये करते रहता है ओके so up to this is about the preparation and for today we'll discuss up to this preparation tomorrow in the class we'll discuss about the physical properties thank you